नमस्कार, मैं हूं मयूरी का और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ फिर एक बार आपके सामने हाजिर है, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस से। वडोदरा में देना और दुमाड़ का फ्लाईओवर ब्रिज बनकर तैयार, कल नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। गुजरात बोर्ड की परीक्षाओं में इंटरनल मार्क्स का बड़ा घोटाला, निजी स्कूलें छात्रों को देती है मनचाहे मार्क्स। और पावागढ़ में पलट गई श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी, 11 श्रद्धालु घायल। गुजरात के वडोदरा में देना और दुमाड़ चौकड़ी पर 52 करोड़ की लागत से बनाए गए फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण करने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वडोदरा आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसी के तहत अब वडोदरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रंजनबेन भट्ट, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, कॉरपोरेशन के मेयर नीलेश राठौड़, वडोदरा जिला अध्यक्ष सतीश पटेल समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा 9 साल में हासिल की गई उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया गया। 26મી મે 2014 રોજ વડાપ્રધાન તરીકે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ દેશની ધુરા સંભાળીને સમગ્ર દેશમાં પહેલી વખત બિન કોંગ્રેસી અને પહેલી વખત બહુમતવાળી સરકારની શરૂઆત કરી। 26મી મે 2023ના રોજ એના 9 વર્ષ પૂર્ણ થયા અને 30મી તારીખથી આ વાત લોકો સુધી લઈ જવા માટેના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આજે પહેલી તારીખ, આજથી 5 તારીખ સુધી વડોદરા શહેરના બધા જ માન્ય મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલરશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ સાંસદની સાથે રાખીને પોતાના વોર્ડમાં 50 જેટલા લોકો કે જે લોકો પ્રભાવી મતદાર તરીકે પાર્ટીના માધ્યમથી આઈડેન્ટિફાય થયેલા છે, આ એવા લોકો છે કે જે લોકોની પોતાની સમાજમાં એક પ્રતિષ્ઠા છે, જેમના કહેવાથી સમાજમાં મોટાભાગના લોકો એમની વાત સ્વીકારે છે। સંપર્કથી સમર્થન આ ટેગલાઇન સાથે આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી છે। દરેકે દરેક વોર્ડમાં 50 લોકો એટલે કે 19 ઇલેક્શન વોર્ડમાં લગભગ 900 જેટલા લોકોના માધ્યમથી આપણે જોડવાના છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 1995થી ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે, 2014થી કેન્દ્રમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે। ત્યારે આ સમયગાળા દરમિયાનમાં જે મોટા અને પ્રભાવી કામો થયેલા છે વિસ્તારમાં, પછી એ સાંસદશ્રીની ગ્રાન્ટમાંથી થયા હોય, ધારાસભ્યશ્રીની ગ્રાન્ટમાંથી થયા હોય, રાજ્ય સરકારના માધ્યમથી થયા હોય, આવા જે મોટા કામો દરેકે દરેક વોર્ડમાં થયેલા છે, એ વોર્ડમાં થયેલા કામોમાં જે કામો વધારે મહત્વના હોય એવા કામોની વિઝિટ લેવાની, એટલે કે આ વિકાસની જે તીર્થ છે એ વિકાસના તીર્થ સુધી પહોંચવાનું ધારાસભ્યશ્રીઓ આ કાર્યક્રમને લીડ કરે અને કાઉન્સિલરશ્રીઓ, વોર્ડની સંગઠનની ટીમ એમની સાથે રહે, એ પ્રકારના કાર્યક્રમનું આયોજન 1 જૂનથી 20 જૂન સુધી કરેલું છે। 9 વર્ષનું સુશાસન વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ આપ્યું છે દેશને। મિત્રો, મારું વડોદરા, આપણું વડોદરા, અને આપણા વડોદરામાં પણ કેમ ભૂલીએ કે વડોદરાને પણ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મેં આ પત્રિકા બધાને જ આપી છે અને આ પત્રિકા દ્વારા ખાલી ને ખાલી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આપણને કયા કયા વિકાસના કામો, વિકાસના આયામો દ્વારા વડોદરાને લાભ થયો છે એ વાત હું આપની વચ્ચે કહીશ। 14 પછી આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ દેશનું બીજા નંબરનું ગ્રીન એરપોર્ટ એ વડોદરાને આપ્યું। પહેલું એરપોર્ટ એ ચંદીગઢ ખાતે હતું, બીજા નંબરનું એરપોર્ટ એ વડોદરાને મળ્યું। અને હમણાં જ મિત્રો, આપણા બધાની ઈચ્છા હતી કે આ એરપોર્ટ ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાનું એરપોર્ટ હોય તો અહીંયા ઇન્ટરનેશનલ અને ઇમિગ્રેશન અહીંયાથી કેમ ન મળે, અને આપ બધાની માંગણી, મારી વડોદરા લોકસભાના મતદારોની માંગણી, આને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રધાનમંત્રીશ્રી એ મંજૂરી આપી અને આપણા ગૃહમંત્રી આદરણીય
અમિતભાઈ શાહ સાહેબ જ્યારે વડોદરાના MS યુનિવર્સિટીના કાર્યક્રમમાં આવતા હોય ત્યારે એ રાજપત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્યશ્રી હોય, પ્રમુખશ્રી હોય કે સંગઠનની ટીમની વચ્ચે એ વડોદરાને રાજપત્ર આપે, આવું સન્માન આપવાનું કામ આપણને મળ્યું છે. મિત્રો, રેલવે સ્ટેશન હોય તો એને નિર્માણ કરવાનું કામ 17.5 કરોડના ખર્ચે બુલેટ ટ્રેનનું ટ્રેનિંગ સેન્ટર વડોદરાને મળે. ગતિશક્તિ યુનિવર્સિટી દેશની પ્રથમ નંબરની એ યુનિવર્સિટી વડોદરાને મળે. સેટેલાઇટ છારાપુરી રેલવે સ્ટેશન એ વડોદરાનું સંપૂર્ણ નિર્માણ થયું, અત્યારે કાર્યરત પણ છે. મિત્રો, એવી જ રીતે પ્રતાપનગર રેલવે સ્ટેશનને પણ આપણે સેટેલાઇટ રેલવે સ્ટેશન બનાવવા જઈ રહ્યા છે, અત્યારે ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં છે. મિત્રો, અનેક કામો આપણને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી પણ મળ્યા છે. અત્યારે જ માંગણી કરી હતી કે વડોદરાની સાવલી ખાતે ESI હોસ્પિટલ મળે, એ પણ 100 બેડની હોસ્પિટલ વડોદરાને મળી. તમે જુઓ કે CSRના માધ્યમથી પણ વડોદરાની કેટલી સેવા કરી શકીએ એ દિશામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. તો गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले कई वक्त से बन रहे देना और दुमाड़ के ओवरब्रिज बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन करने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी कल वडोदरा आ रहे हैं, जिस पर वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट ने जानकारी दी। આવતીકાલે એટલે કે 2 તારીખે માન્ય કેન્દ્રીય મંત્રી આદરણીય નીતિન ગડકરીજી વડોદરા મુકામે આવી રહ્યા છે. વડોદરા સૌભાગ્યશાળી છે કે 1 વર્ષ પહેલાં આપણા વડોદરાને જે દુમાડ પાસે ટ્રાફિકની સમસ્યા હતી, દુમાડ પાસે અમદાવાદથી સુરત જવાવાળા લોકોને જે 1-1.5 કિલોમીટર ટ્રાફિકની સમસ્યાનો ભોગ બનવો પડતો હતો, અને એના માટે જ્યારે કેન્દ્ર સરકારમાં ગડકરી સાહેબ પાસે રજૂઆત કરવામાં આવી અને એમણે એ તાત્કાલિક એ ત્યાં જવા અને સુરતથી અમદાવાદ જવા માટેનો એ બંને બાજુના બ્રિજનું નિર્માણ જલ્દીથી થાય એ દિશામાં એમણે પરમિશન આપી અને ખુદ એમણે પોતે ત્યાં શિલાન્યાસ કર્યો હતો. આવતીકાલે આદરણીય નીતિન ગડકરી સાહેબ એ બ્રિજનું લોકાર્પણ કરવા આવી રહ્યા છે. અને એની સાથે દેણા અંડરપાસ એટલે કે વડોદરા દેણા જે હાઈવેથી લોકોની અવરજવર થતી હતી, આગળ જતાં દેણામાં આપણી એક કોલેજ પણ છે, સ્ટુડન્ટ પણ લગભગ 2-3 હજાર સ્ટુડન્ટને રોજે જવા આવવાનું થાય, અને એમાં કેટલાય બ્લેક સ્પોટ હોવાના કારણે કેટલાય એક્સિડન્ટ થતા હતા. તો ત્યાં પણ અંડરપાસ આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા ત્યાં ખાતમુહૂર્ત 25 ડિસેમ્બર 2021ના દિવસે કરવામાં આવ્યું હતું, અને એનું પણ લોકાર્પણ કાલે આદરણીય નીતિન ગડકરીજી અને આપણા ગુજરાતના ગૃહમંત્રી આદરણીય હર્ષભાઈ સંઘવી સાથે સાથે વડોદરા શહેર એટલે કે મારી લોકસભાના સૌ ધારાસભ્યશ્રી, શહેરના અધ્યક્ષ, જિલ્લાના અધ્યક્ષ, માન્ય મેયરશ્રી અને સાથે સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ અને વડોદરાની જનતા દ્વારા જ્યારે નીતિન ગડકરી સાહેબ આવી રહ્યા છે તો ત્યાં લોકાર્પણ થવાનું છે. ગડકરી સાહેબ એક્ઝેક્ટ 12:30 વાગે વડોદરા ખાતે આવવાના છે, અને ત્યાર પછી તેઓ અહીંયા લગભગ 1 થી 1.5 કલાક રોકાઈને પહેલાં આવ્યા પછી એરપોર્ટથી આવ્યા પછી સીધા એ ત્યાં આગળ જે દેણા બ્રિજ છે એ દેણા બ્રિજની ઉપર રિબિન કાપશે, અને ત્યાર પછી જે દુમાડ બ્રિજ આપણે બનાવ્યો છે એની મુલાકાત કરશે, અને મુલાકાત કરીને તેઓ પછી સભાના સ્થળે આવીને એનું વિધિવત લોકાર્પણ કરશે. गुजरात में बोर्ड परीक्षाओं में इंटरनल मार्क्स का स्कूल द्वारा किया जाता घोटाला और साथ ही गुजरात में महंगी हो रही शिक्षा पर गुजरात कांग्रेस ने आवाज उठाई है. ધોરણ 10નું જે રિઝલ્ટ હોય છે એ ધોરણ 10ની અંદર વિદ્યાર્થીઓને 100 માર્ક્સની એક્ઝામ આપવાની હોય છે, પરંતુ એ એક્ઝામના 80 માર્ક ગણાય છે માર્કશીટની અંદર, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનની અંદર, અને બાકીના 20 માર્ક છે એ શાળાઓ એ ઇન્ટરનલ માર્ક્સ આપે છે. આ ઇન્ટરનલ માર્ક્સ જે છે શાળાઓના, એ ઇન્ટરનલ માર્ક્સ આપવા માટે થઈને એની માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે એક મૂલ્યાંકન પદ્ધતિ બનાવેલી છે, જેમાં શાળાની પ્રથમ કસોટીના માર્ક્સ હોય,
એના 5 માર્ક આપવાના હોય એના પ્રમાણમાં, શાળાની પ્રિલિમ કસોટીના માર્ક્સ હોય એના પ્રમાણમાં 5 માર્ક્સ આપવાના હોય, બાકીના 5 માર્ક છે એ યુનિટ ટેસ્ટ જે વર્ષ દરમિયાન 5 લેવાય એમાંથી આપવાના હોય ને, જે વધ્યા 5 માર્ક એની અંદર 3 માર્ક એમના પોતાના હોમવર્ક, એના નોટબુક, એના ચોપડા, એની શિસ્ત અને એની હાજરી, અને બાકીના 2 માર્ક એને કોઈ એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટી, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી કોઈ સર્ટિફિકેટ કે મેડલ મેળવેલું હોય એના આપવાના હોય છે. આજે જ્યારે મોટા ભાગની અમે લોકોએ અમારી જે રિસર્ચ ટીમ છે એમણે અહીંયા ઉજાગર કર્યું, આ બધી માર્કશીટ અમે કોમ્પ્યુટર ઉપર જોયેલી છે, ઓનલાઈન જોયેલી છે. ગુજરાતના 10 લાખ વિદ્યાર્થીઓની માર્કશીટ ઓનલાઈન મૂકેલી છે. અમે જે રેન્ડમલી માર્કશીટો તપાસ કરી એની અંદર મોટા ભાગે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલો જે છે એમાં તમે જોઈ શકો છો કે વિદ્યાર્થીને સાયન્સની અંદર 54 માર્ક છે 80માંથી, પરંતુ અહીંયા 20માંથી 20 માર્ક આપેલા છે. લેંગ્વેજ જેવી વસ્તુઓ હોય એની અંદર પણ 20માંથી 20 માર્ક આપેલા છે, 13 માર્ક આપેલા છે. વળી પાછી પેટર્ન પણ એવી જ છે, 18-20, 18-20, 18-20. કોઈ પણ પેટર્નની અંદર જુઓ તમે, અહીંયા 48 માર્ક એને મેથ્સના આવેલા છે અને 20માંથી 20 માર્ક આપેલા છે. અહીંયા વિદ્યાર્થીને ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને અમે વિદ્યાર્થીનું નામ જે છે અને એનો એનરોલમેન્ટ નંબર છે એ અમે બંધ કરેલો છે અથવા એને ચેકી નાખેલો છે. તમે આ વિદ્યાર્થી જુઓ કે જેને ગુજરાતીની અંદર માત્ર 9 માર્ક આવ્યા છે અને ઇન્ટરનલ 16 માર્ક આપવામાં આવેલા છે. તમે વિચાર કરો, ગુજરાતીમાં જે વ્યક્તિ ફેલ છે એને ઇન્ટરનલ 80% માર્ક્સ આપવામાં આવેલા છે. આ પ્રમાણે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલો જે છે મોટા ભાગે આની અંદર ગ્રાન્ટેડ કરતાં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલોએ આવા પ્રકારનું કૌભાંડ આચરેલું છે. અને એનું કારણ એકમાત્ર એ જ હોઈ શકે કે પોતાની સ્કૂલનું રિઝલ્ટ વધારે બતાવવું, પોતાની શાળાનું રિઝલ્ટ વધારે બતાવવા માટે થઈને આવા પ્રકારના માર્ક્સ આપવામાં આવેલા છે. અમે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ એ માગણી કરીએ છીએ શિક્ષણ મંત્રી પાસે કે ધોરણ 10ની અંદર ઇન્ટરનલ માર્ક્સની જે પ્રથા છે એ બંધ કરી દેવી જોઈએ. કોંગ્રેસની સરકારની જે જૂની સ્ટેટ યુનિવર્સિટીઝના ફી સ્ટ્રક્ચર્સને જોઈએ છે અને હાલની આ પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીની ઉઘાડી લૂંટને જોઈએ છે, તો જે ચોંકાવનારા આંકડા છે આપની સમક્ષ મૂકું છું. આ માત્ર કેટલીક જ યુનિવર્સિટીના ઉદાહરણ છે, પણ ગુજરાત રાજ્યમાં આવી 100થી વધારે શિક્ષણની હાટડીઓ ખુલી છે, તેનો પર્દાફાશ કરીએ છીએ. અમદાવાદ યુનિવર્સિટીમાં પ્રતિ વર્ષ બીકોમની ફી 4,20,000, એટલે 4 વર્ષના અંતે 16,80,000. એ જ યુનિવર્સિટીમાં બીએની ફી 4,20,000, એ જ યુનિવર્સિટીમાં બીબીએની ફીસ 4,20,000, જે 16,80,000 4 વર્ષના અંતે થાય છે. એ જ રીતે નિરમા યુનિવર્સિટીમાં બીકોમ ઓનર્સનો કોર્સ ચાલે, જેની પ્રતિ વર્ષ 3,42,000 ફી છે, જે 13,68,000થી પણ ઉપર જાય છે. અને 5 વર્ષનો ઇન્ટિગ્રેટેડ MBAનો કોર્સ જેની ફી છે 19.65 લાખ રૂપિયા. એ જ રીતે PDPUની વાત કરીએ તો PDPUમાં બીકોમ, BA અને BBAમાં મિનિમમ ફી પ્રતિ સેમિસ્ટર એટલે કે 6 મહિનાના 1,35,000. આશરે વર્ષમાં 4 વર્ષનો એમનો રેકોર્ડ જોઈએ તો મિનિમમ 10,08,000 જેટલી ફી એક વિદ્યાર્થીએ ભરવી પડે. આ 3 યુનિવર્સિટી મિલિયન 10 લાખ રૂપિયા ઉપરની ફીસની ક્લબમાં આવી ગઈ છે. એ જ રીતે કર્ણાવતી યુનિવર્સિટી, જેમાં 4 વર્ષની BAની ડિગ્રીનો કોર્સ 8,25,000, BBA 8,25,000. અને એની સામે ભૂતકાળની કોંગ્રેસ સરકારમાં બનેલી જે યુનિવર્સિટીની ગ્રાન્ટીનેડ અને ગવર્મેન્ટ કોલેજ, ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં BA કરવું હોય તો દીકરા માટે 1,095 અને દીકરી માટે 870, એટલે માત્ર 8,760 રૂપિયામાં
જે દીકરો ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ગ્રાન્ટીને કોલેજમાં અથવા તો સરકારી કોલેજમાં ગ્રેજ્યુએટ થાય એને લાખો રૂપિયાની રકમથી ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી લૂંટી રહી છે. અલગ અલગ 5-5 યુનિવર્સિટીનો ડેટા આપ્યો છે. સરકારની યુનિવર્સિટી હોય ભાવનગર યુનિવર્સિટી, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, MS યુનિવર્સિટી, સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી, સામે અમદાવાદ યુનિવર્સિટી, નિરમા યુનિવર્સિટી, PDPU, કર્ણાવતી, ઇન્ડસ જેવી યુનિવર્સિટી અને આવી અનેક LJ હોય, GLS યુનિવર્સિટી હોય અને આવી 108 યુનિવર્સિટી હાલની તારીખમાં ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને खुलेआम लूटी रही है. पावागढ़ में मां काली के दर्शन करने के लिए आए छोटाउदेपुर के कवाट के कुछ श्रद्धालु गाड़ी पलट जाने से हादसे का शिकार बने. गुजरात के हालोल में प्रसिद्ध यात्राधाम पावागढ़ है, जहां महाकाली मां के दर्शन के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की आवाजाही देखी जाती है. ऐसे ही कुछ श्रद्धालु छोटाउदेपुर के कवाड़ से महाकाली मां के दरबार में शीश नवाने के लिए आ रहे थे. उस दौरान मांझी निकट हादसे का शिकार बने. पावागढ़ पर्वत की ओर जाने वाली सड़क ऊंची नीची होने की वजह से बोलेरो के चालक ने संतुलन गंवा दिया और गाड़ी हादसे का शिकार बनी. बोलेरो गाड़ी में 11 लोग सवार थे, जिन्हें गंभीर चोटें पहुंची है. इन सभी को हालोल के सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है. बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां मोबाइल सर्विस देने के नाम पर यहां टावर लगाकर लोगों की जान पर खतरा पैदा कर रही है. एक ऐसे ही मामले में हालोल में BSNL के टावर को सील कर दिया गया. गुजरात के पंचमहाल के हालोल में 30 से ज्यादा मोबाइल टावर देखे जा रहे हैं. पालिका द्वारा मामले की जांच किए जाने पर सिर्फ 19 टावर की अनुमति ली गई है और बाकी के टावर अवैध है. पहले भी इन टेलीकॉम कंपनियों ने पालिका को लाखों रुपए का टैक्स नहीं चुकाया है. ऐसे में जियो, वोडाफोन, BSNL, एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों को 38,15,569 रुपए की भरपाई के नोटिस दिए गए हैं. पालिका द्वारा टावर का इस्तेमाल करने वाली टेलीकॉम कंपनियों को 1 सप्ताह का नोटिस दिया गया था, लेकिन फिर भी टैक्स नहीं भरे जाने से हालोल के पावागढ़ रोड पर SB नगर इलाके में स्थित BSNL के टावर को कॉरपोरेशन द्वारा सील कर दिया गया. BSNL ने 5,71,247 रुपए का टैक्स नहीं भरा है. ऐसे में MGVCL का कनेक्शन भी रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है. હાલોલ નગરપાલિકામાં આવેલા વિવિધ ટાવરોના લગભગ 40 લાખથી ઉપરના વેરા વસૂલાત બાકી છે. આથી સૌથી પહેલાં આજે PSP નગરમાં BSNL ટાવર કે જેના 5,71,242 રૂપિયા બાકી હતા એને સીલ કરવાની કામગીરી આજે હાથ ધરવામાં આવી. આ સીલ કરવા સાથે એની જે સ્વિચ છે એ સ્વિચ બંધ કરી દેવામાં આવી છે, જેથી ટાવરની સેવાઓ હાલ એ નહીં આપી શકે. અને આમ કરી અને નગરપાલિકાએ કામગીરી હાથ પર લીધી છે. બાકીના બધા જેટલા ટાવરો છે તેમની વસૂલાત માટે હવે આ કામગીરી આવી જ રીતે કરવામાં આવશે. रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग के साथ पिछले कई दिनों से महिला पहलवानों का धरना चल रहा है, जिसका समर्थन वडोदरा में संयुक्त कामदार मोर्चा ने किया है. देश की राजधानी दिल्ली में जातीय शोषण के खिलाफ देश की महिला पहलवान पिछले कई दिनों से लड़ रही है, लेकिन सरकार उन्हें न्याय देने में असफल रही है. ऐसे में वडोदरा में संयुक्त कामदार समिति और संयुक्त ट्रेड यूनियन समिति द्वारा हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मामले का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया. ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लीडर्स, लोकल ट्रेड यूनियंस के लीडर, हमारे जो देश के अंदर खास करके दिल्ली के अंदर हमारे पहलवान साथी जो देश के गौरव है, जिन्होंने देश के लिए कई मेडल जीते हुए हैं, आज वो लोग मुश्किल में है और एक गंभीर मामला है सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा, फिर भी सरकार उसके ऊपर कोई दरकार नहीं दे रही है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है. जो गिल्टी आदमी है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है. इसके लिए उसका विरोध करके सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने हमें कॉल दिया उस हिसाब से. और जैसे कि हमने पहले ही कहा कि अगर उसका कोई समाधान सही तरीके से सही ढंग से नहीं निकला तो इस आंदोलन को हम रोड तक ले जाएंगे, जन आंदोलन बना देंगे. और उसके लिए हमारी पूरी टीम, पूरे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लीडर, पूरे लोकल ट्रेड यूनियन के लीडर तैयार है. कोई लागनीहीन इस देश की शासक वर्ग एक कदम उठाना नहीं चाहते हैं. वो एक रेपिस्ट MP को बचाना चाहते हैं.
लेकिन इस देश के लिए जिन्होंने गौरव लाए, जिन्होंने स्वर्ण पदक लाए, उसको न्याय मिले उस प्रकार से कोई कदम नहीं उठा रहा है। और उतना ही नहीं, हद तब होती है जब अपने आंदोलन में जो अडिग खड़े इस महिला है, उन लोग जब संसद भवन के पास महिला संसद करने जा रहे थे, उनके प्रति पुलिस ने जो जुल्म उठाए, जो जुल्म किए, ये बहुत ही निंदनीय है। हम सब सारे देश उसको कंडेम करते हैं। और आज हमने ये जो आवेदन पत्र यहाँ दिए हैं, इसमें यही मांग किया गया है कि जितने भी पुलिस कर्मचारी अन्याय किया है उसको उसके सामने कार्रवाई हो और बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत अरेस्ट करके उनके ऊपर पोक्सो में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए और उनको तुरंत सजा किया जाए। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए वीएनएन के साथ। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दिव्यांग बच्चों को प्लेटफॉर्म देने में हमेशा ही आगे रही वासद की SVIT कॉलेज द्वारा स्पेशल ओलंपिक्स के साथ एक खास MOU साइन किया गया है। गुजरात के वासद की SVIT कॉलेज द्वारा पिछले कई वक्त से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया जाता रहा है। इसी क्रम में स्पेशल ओलंपिक के साथ वासद की SVIT कॉलेज ने एक खास MOU किया है। इस MOU पर SVIT अध्यक्ष रौनक पटेल, प्राचार्य डॉक्टर DP सोनी, स्पेशल ओलंपिक्स गुजरात की ओर से चेयरमैन डॉक्टर DG चौधरी और ट्रस्टी जिग्नेश ठक्कर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। શું રમો છો તમે? ક્યાં જવાનું છે? બર્લિન ક્યાં છે? સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક સાથે જોડાવાથી યુથને ઘણા બધા ફાયદા થાય છે, જેમ કે લીડરશિપ ક્વોલિટીઝ એમનામાં શું છે એ ખબર પડે, ટીમ વર્ક ખબર પડે, અને આવી સ્પેશિયલ એથ્લીટ સાથે કામ કરીને તમને તમારી પણ ઘણી બધી સ્પોર્ટ્સ વિશેનું જાણવા મળે કે તમે શું કરી શકો છો, શું નહીં, અને તમને સ્પોર્ટ્સ સિવાય બીજી કઈ કઈ વસ્તુઓમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એ બી તમને આ સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે, અને તમે એમાં ઘણી બધી જગ્યાએ આગળ વધી શકો છો। રમત ગમત એક એવી વસ્તુ છે કે જે માનસિક દિવ્યાંગ બાળકોમાં રહેલી ક્ષમતાઓને વિકસાવે છે અને એમનામાં આત્મવિશ્વાસનું સિંચન કરે છે। જ્યારે આજ માનસિક દિવ્યાંગ બાળકોમાં આત્મવિશ્વાસ કેળવાય છે ત્યારે તેઓ બીજા અન્ય કાર્યો કરવા પણ પોતાના પગભર થઈ શકે છે। તો આ રીતે રમતગમત થકી પોતાને સ્વાવલંબી બનાવવા એવા એક ઉમદા કાર્ય સાથે સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક કાર્ય કરી રહી છે।
इस एमओयू के जरिए मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में योग्य स्थान दिलाने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वासद की एसवीआईटी कॉलेज द्वारा स्पेशल ओलंपिक्स के साथ मिलकर विभिन्न गतिविधियां की जाएगी। पिछले कई सालों से हम स्पोर्ट्स डायरेक्टर और एसवीआईटी एनएसएस यूनिट और एसवीआईटी के बच्चे स्पेशल ओलंपिक के साथ काम कर रहे हैं और ये देखते हुए हमको ऐसा लगा कि भाई समाज में जो एक पिछड़ा वर्ग है हमारा, जो मानसिक क्षतिग्रस्त वाले बच्चे हैं, उनको समाज में वो स्थान नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। तो इसके लिए स्पेशल ओलंपिक जो काम कर रहा है वो हमको काफ़ी पसंद आया और हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज हमने उनके साथ एक एमओयू भी साइन किया है जिसके अंतर्गत हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स एसवीआईटी के बच्चे उन बच्चों के साथ काम करेंगे और उनको खेलकूद के माध्यम से और अन्य रीत से उनको मदद करेंगे और उनके सर्वांगीण विकास में हमसे जितना हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे, जिससे कि वो भी एक अच्छे नागरिक बन सकें और देश के साथ, देश के लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। आ रमतगमतो मार्फते दिव्यांग बाळकोनी आंतरिक मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्तिनो विकास थाय छे अने तेओ पगभर बने छे। तो आ माटे समग्र स्पेशल ओलंपिक गुजरातनो हूँ आभार व्यक्त करूँ छूँ। गुजराती फिल्मों का दौर अब बदल गया है। गुजराती फिल्में भी अब तरह तरह की बन रही है और दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। ऐसी ही एक कॉमेडी फिल्म लेकर आए हैं स्मित पंड्या और संजय गरासिया। नाम है 4 फेरानू चकडोळ, जो रिलीज के लिए तैयार है। गुजराती मूवी 4 फेरानू चकडोळ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर में ही ऑडियंस का अच्छा रिएक्शन देखने मिल रहा है। ये फिल्म 9 तारीख को रिलीज हो रही है और ऐसे में मूवी के प्रमोशन के लिए फिल्म के एक्टर सिमरन बुट्टानी और भार्गव परमार वडोदरा के टाइम्स कैफे पहुंचे। इस फिल्म को निशित ब्रह्मभट्ट ने डायरेक्ट किया है और ध्रुव मेहता ने प्रोड्यूस किया है। मूवी की मेन कास्ट में गुजरात के मशहूर अभिनेता संजय गोरडिया, स्टैंड अप कॉमेडियन और किशोर काका के नाम से पॉपुलर स्मित पंड्या के साथ साथ दिशा उपाध्याय, भाविनी गांधी जैसे कई एक्टर्स हैं। ये फिल्म विदेश से भारत में शादी के लिए आई एक लड़की पर बनी है जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी। कि आप इस फिल्म के बारे में और आपका जो कैरेक्टर है इस फिल्म में उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ओके, सो इस फिल्म में मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसका नाम लूसी है एंड आई एम अ कैरेक्टर हु कम्स फ्रॉम यूएसए, हु इज़ अ गुजराती। हाँ, मैं गुजराती हूँ पर मैं यूएसए से आती हूँ अपनी शादी की शॉपिंग करने एंड आई एम अ गुजराती बट मुझे गुजराती बोलना आता नहीं है। तो मेरा जो कैरेक्टर है इज़ अ लिटिल कॉमेडी क्योंकि मैं बहुत टूटी फूटी गुजराती बात करती हूँ। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड अगर आप फिल्म देखोगे, इफ़ यू वॉच द ट्रेलर इज़ ऑलरेडी आउट। इफ़ यू वॉच द ट्रेलर इज़ वेरी कॉमेडी एंड इट्स अ फैमिली ड्रामा, इट्स अ फैमिली कॉमेडी फिल्म। जो डे टू डे लाइफ में होता है, एक हस्बैंड वाइफ, एक बेटे, एक सन एंड फादर के बीच में, वो चीज़ का हमने इसको एक ड्रामेटिक वे में दिखाया एंड इट्स अ कॉमेडी फिल्म बेसिकली। सो आई थिंक एवरीवन विल लव वाचिंग द फिल्म। ज़्यादातर अब तक आपको मॉडर्न गर्ल के रूप में और इस मूवी में भी आपका मॉडर्न किरदार है। यस। तो आप कभी ऐसा अपने आप को देखती हैं कि आप एक टिपिकल इंडियन कैरेक्टर में दिखाई देंगे? येस, ऑफ कोर्स, बिकॉज एक एक्टर होने के नाते आई थिंक हमें वर्सेटाइल रहना चाहिए एंड आई डू सी माई सेल्फ डूइंग ऐसे रोल्स भी। ऑल्सो मुझे एक ऐसा रोल भी करना है जो वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई फिल्म बनी हो, उस पर आई रियली वॉन्ट टू डू अ रोल ऑन दैट एज वेल। तो येस, आई डू सी माई सेल्फ डूइंग अ टिपिकल फीमेल रोल। आप आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? आई हैव 2 more अपकमिंग फिल्म्स इन दिस ईयर, जो कि एक दिवाली पे रिलीज़ हो रही है एंड एक क्रिसमस पे रिलीज़ हो रही है। सो आई हैव 3 films लाइंड अप दिस ईयर दैट्स रिलीजिंग। आपका संजय गरुड़िया और स्मित पंड्या जैसे एक अच्छे खासे एक्टर के साथ में काम करने का क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, स्पेशली विद स्मिथ, बिकॉज मैंने स्मिथ के साथ आई हैव फेस द कैमरा विथ हिम, आई एम इन द फ्रेम स्मिथ के साथ। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, बी इट फ्रॉम अ स्मॉल थिंग या सबसे बड़ी चीज़ फिल्म के अंदर या फिल्म के बाहर की चीज़ हो, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एज अ सिस्टर ट्रीट किया है। एंड वर्किंग विथ स्मिथ एंड संजय भाई is like a really good experience because even Sanjay bhai, if you know, Sanjay bhai दिग्गज है like। शूटिंग के दौरान कोई ऐसा सीन रहा है जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगा हो या ज़्यादा टेक्स लेने पड़े? शूटिंग के दौरान मुझे कुछ भी डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमारा जो सेट का माहौल था वो इतना ब्यूटीफुल था, इतना होमली था कि हर एक्टर एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। डिफ़िकल्टी लेवल पे आई थिंक आई वुड
rate it on 0 because even the director Nishit Brahmbhatt, the director of our film, was so humble. मतलब हमसे कुछ भी गलती हो तो he would actually help us do it. इवन संजय सर को मैं देखती थी तो वो एकदम फ्री होते थे सेट पे. ही यूज टू पुट इन द कैरेक्टर वेरी इजीली. तो उनको देख के भी आई लर्नड कि कैरेक्टर को कैसे इजीली अपने आप में पुट इन करना है. सो आई थिंक इट वाज वेरी इजी फॉर मी एंड आई रियली लव द एक्सपीरियंस. हमारी फिल्म चार फेरानू चकडोर इज़ रिलीजिंग ऑन द 9th of June. ट्रेलर्स बाहर हो चुके हैं. द सॉन्ग इज़ आउट. प्लीज़ गो वॉच इट. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. हम अपने तरफ से अपना प्रमोशंस कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू लेट द फिल्म रीच आउट टू यू. प्लीज़ गो एंड वॉच चकडोर माँ बेस्ट जो बहुत मजा आपसे. इस फिल्म में स्मित पंड्या के साथ मिलकर भार्गव परमार ने अनोखी कॉमेडी जुगलबंदी पेश की है जो हर किसी उम्र के लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर देगी. ચાર ફેરાનું ચકડોળ અને એ જે લાઇન છે એમાં જ આખા ફિલ્મની વાર્તા સમાયેલી છે કે ચાર फेरे हम शादी के घूमते हैं और उसके बाद जो पूरी जर्नी होती है उसी के बारे में फ़िल्म है पूरी. और उसमें मेरे कैरेक्टर के बारे में बताऊँ तो पहले तो मेरा कैरेक्टर बहुत छोटा था जब फिल्म का स्क्रिप्टिंग हुआ ये वो. फिर उसके बाद हम जैसे शूटिंग पे गए, फ्लोर पे गए, फिर वो कॉमिक कैरेक्टर है, कॉमेडी है उसके साथ, और उसी कैरेक्टर को धीरे धीरे ऐसे बिल्ट होता गया और पूरी फिल्म में वो कैरेक्टर मेरा बन गया है. हाँ, और मेरा ज़्यादातर स्मित भाई के साथ बहुत जुगलबंदी है, संजय सर के साथ ज़्यादा जुगलबंदी है, उन लोगों के साथ कॉमेडी सीक्वेंसेस है, ये है वो है. तो बहुत बेसिकली कैरेक्टर का भी खुद का भी बहुत मज़ा आया और ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने का भी मुझे बहुत मज़ा आया कि उन लोगों का ऑफ शूट भी मतलब ऑफ स्क्रीन भी इतना बॉन्डिंग अच्छा हो गया उनके साथ कि मुझे ऑन स्क्रीन बहुत इजीली ये सब ग्रास्प करने में बहुत ही मज़ा आया. હજી તમને છે ને આપણા વહીવટ ખબર જ નથી, એટલે આપણા વહીવટ જાણવા માટે અમારું ફિલ્મ આવી રહ્યું છે ચાર ફેરાનું ચકડોળ 9મી જૂને તમારા નજીકના સિનેમાઘરોમાં. તો તમે જાઓ અને માણો અને ખૂબ એન્જોય કરો. किसी भी शहर में गंदगी का जिम्मेदार ज़्यादातर कॉरपोरेशन को ठहराया जाता है, लेकिन कई बार नागरिक खुद इसके जिम्मेदार होते हैं. कुछ ऐसा ही गुजरात के वडोदरा शहर में सामने आया है. गुजरात के वडोदरा के किशनवाड़ी इलाके में लक्ष्मी नगर के निवासी सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर कचरा फेंककर गंदगी फैलाते हैं. यहाँ कॉरपोरेशन द्वारा रोजाना डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन किया जाता है और कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी रोजाना डिवाइडर की सफाई भी करते हैं, लेकिन नागरिक जो है वो डिवाइडर के बीच ही कचरा डाल देते हैं. यहाँ कॉरपोरेशन द्वारा डिवाइडर को सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, लेकिन नागरिक जो है वो गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं. આજે કચરો નાખે છે, શું કહેશો એ વિશે? બધા નાખે ગલીવાળા નાખતા હોય. કચરાની ગાડી આવે છે છતાં પણ તમે કચરો નાખો છો? નથી આવતી એટલા માટે નાખો છો? હા, ગાડી નથી આવતી. दिल्ली कचरो આવે છે, दिल्ली સાફ કરી છે. કઈ જગ્યાએથી છે? આ સાંગોથી જ આવે છે, ગાડીવાળા નાખી અંદર આવી. એ પબ્લિક નાખે અમને ખબર નહીં, અમે તો વાળી લઈને કમ્પ્લીટ કરી દીધા. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हाल ही में गंदगी फैलाने वाले लोगों को दंडित किए जाने की कार्रवाई शुरू की गई है. ऐसे में किशनवाड़ी इलाके में डिवाइडर पर फैलाए जाते कचरे पर भी क्या कोई कार्रवाई होगी, ये सवाल स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल से पूछे जाने पर उन्होंने इस पर अपना जवाब दिया है. जिस प्रकार से वडोदरा एक संस्कारी नगरी है, कला नगरी है, फिर भी कई लोग कई जगह पे अपने हिसाब से नहीं, लेकिन जिस प्रकार से जो लोग डिवाइडर पे या अन्य स्थान पे जिस प्रकार से एक कूड़ा कचरा डालते हैं वो बिल्कुल योग्य नहीं है. इसीलिए हमको एक स्टेप भी लेना पड़ता है और जहाँ पे जो भी ऐसे लोग पाए जाते हैं उनके ऊपर हमने दंड भी किया है और आने वाले टाइम में उसी लाइन पे हम आगे भी बढ़ने वाले हैं. हर रोज़ हर एक वार्ड को एक जिम्मेदारी भी दी है. जहाँ पर ऐसे लोग पाए जाए उनको बिल्कुल कोई भी प्रकार की बाँचोड़ के बगैर उनको दंडात्मक कार्यवाही करनी है. जिस प्रकार से किशनवाड़ी, आजवा रोड या अन्य जगह पे डिवाइडर पे कई लोग अपने घर का जो खाना बनने के बाद जो बचता है वो डालने के लिए आते हैं, उसके हिसाब से कई पशुधन भी वो खाने के लिए आती है, तो वो एक अकस्मात को भी न्योता देते हैं. हम बारी बारी बोलते हैं ये चीज़ गलत है. हम लोगों को एक अपील करते हैं लोग भी इनमें साथ दें. जहाँ पर
ढोरवाड़ है, पशुधन का जो एरिया है, वहाँ जाके अपनी आस्था श्रद्धा को सफल बनाए। डिवाइडर के ऊपर या अन्य जगह पे इस प्रकार से गाय या जो अपनी माता है उनको खुराक देने की ये चीज़ गलत है। जो जाहिर में पाए जाते हैं उनको 100 रुपया से लेके 5,000 रुपया तक की एक दंडात्मक कार्यवाही शुरू की है। आने वाले टाइम में बिल्कुल एक ही व्यक्ति बारी बारी पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर अलग प्रकार से हम कार्यवाही करेंगे। किसी नागरिक ने अगर वीडियो शूट किया हो और वो कॉर्पोरेशन को भेजता तो ऐसे कुछ टोल फ्री नंबर या ऐसा कुछ हमारा टोल फ्री नंबर पे बीएमसी का वेबसाइट पे वो अपलोड भी कर सकते हैं। जो हमारा सिस्टम है आईटी सिस्टम, उनको जाके अपना कंप्लेंट भी करवा सकते हैं। गुजरात के लखतर में नर्मदा कैनाल पर बनाया गया ब्रिज खस्ताहाल हो चला है, जिसका सर्वे इन दिनों कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका से गुजरने वाली नर्मदा कैनाल पर बनाया हुआ ब्रिज खस्ताहाल हो चला है और अप्रिय घटना को न्योता दे रहा है। इस खबर के उजागर होते ही प्रशासन हरकत में आ गया है। लखतर तालुका के विठलापरा से धौली धजा डैम तक कैनाल पर बनाए गए पुल का सर्वे शुरू कर दिया गया है। ये सर्वे नर्मदा विभाग द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की टीम बोट में पुल का सर्वे कर रही है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के जरिए पुल की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कन्हैया कुमार के मुताबिक उनकी टीम रिपोर्ट तैयार करेगी और सरकार को सुपुर्द करेगी। सरकार ही निर्णय लेगी कि इस ब्रिज की मरम्मत करनी है या ब्रिज को तोड़कर नए ब्रिज का निर्माण करना है। सबसे लंबे अरसे तक चलने वाला फूड फेस्टिवल गुजरात के वडोदरा शहर में टेस्ट ऑफ वडोदरा के रूप में आयोजित हुआ है, जहां बीती रात रैंप पर नेशनल इंटरनेशनल मॉडल्स ने जलवे बिखेरे। गुजरात के वडोदरा के सबसे बड़े फूड फेस्टिवल टेस्ट ऑफ वडोदरा में INIFT द्वारा एनुअल डिजाइन फैशन शो स्पेक्ट्रम 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए कपड़ों के डिजाइन प्रस्तुत किए गए। फैशन शो में नेशनल इंटरनेशनल मॉडल्स ने रैंप वॉक कर कपड़ों के डिजाइन पेश किए। साथ ही इस मौके पर मॉडल्स द्वारा हाथों में बैनर पोस्टर से सामाजिक संदेश भी दिए गए। इस कार्यक्रम में मिस ग्लोब विनर रही डिम्पल पटेल भी उपस्थित रहीं।
युवा अवस्था में महंगे शौक रखना और गर्लफ्रेंड को महंगे महंगे गिफ्ट देना कई बार चोरी जैसी वारदातों की ओर युवाओं को ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उजागर हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोमती नगर पुलिस को एक बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। दरअसल वाहन चोरी और मोबाइल लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। ये गिरोह महंगे शौक पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देते थे। युवा बाइक चोर गिरोह चोरी की मोटरसाइकिल से लूट करते थे। खरगापुर के रहने वाले सभी युवा बाइक चोर को गिरफ्तार कर उन पर कानूनी कार्रवाई की गई है। विलासिता तो सभी लोगों को आकर्षित करती है। कुछ ज़रूरतें होती है, ज़रूरतें जब बढ़ जाती तो विलासिता में आ जाती है। महंगे मोबाइल का शौक, नशे की आदत, इन सब चीज़ों के कारण सही रास्ते से जीविका उपार्जन करने के स्थान पे इस तरह के अपराध में लोग आ जा रहे हैं। ये समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय, चिंतन का विषय है। लेकिन शुद्ध अपराध की बात करें तो ये लोग मोटरसाइकिल चोरी करते थे, फिर उन्हीं चोरी की गई मोटरसाइकिलों का उपयोग करके मोबाइल स्नैचिंग वगैरह का अपराध करते थे। जो आपके सामने अपराधी खड़े हैं, ये इनमें से 4 लोग खरगापुर थाना गोमती नगर विस्तार के रहने वाले हैं और एक महानगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 2 बाल अपचारी है जिनके संबंध में जानकारी नहीं दी जा सकती। इनसे 5 मोटरसाइकिलें और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। 2 मोबाइल कनेक्ट होने शेष है कि किस घटना से संबंधित है, और इनसे जो बरामदगी हुई है उसके आधार पर थाना गोमती नगर विस्तार, विभूति खंड और महानगर, इन 4 थानों के अपराध अनावृत हुए। तो इस तरह से एक अच्छा गैंग हमारे गोमती नगर पुलिस और क्राइम टीम ने मिलकर पकड़ा है और निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा, आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी, साथ ही जियो टीवी फाइबर के 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को लाइव रोजाना देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।